Good morning, students. How are you all? Have you all started studying and going through your lessons? Do you remember the topic we have started yesterday? Yes, it was decentralization in India. First, we have read about federalism, and now we are studying about the third level of government, that is popularly known as the local government. Yesterday we have also understood why was there need to have this third tier of government, because many states in India are bigger than countries in Europe and other continents. So to have proper administration there was a need felt to have local government. So this process of taking powers from central and state governments and giving to local governments, this process is known as decentralization. फिर हमने समझा था क्यों ज़रूरत पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की, बिकॉज लोकल प्रॉब्लम्स कैन ईजीली बी सॉल्व्ड एट लोकल लेवल. Local people understand properly what are their problems and so on. We have also discussed yesterday how after 1992 a major step was taken when these local governments were made more powerful. And we have also discussed certain points that now it's compulsory to have regular election for local governments, a separate election commission, state election commissions were formed in all the states to conduct these elections. 1/3 seats are reserved for women, seats are reserved for SC, ST, OBC, etc., etc. So these were the various steps taken in the year 1992 to make this third tier of government more powerful. यहाँ तक का हमारा कल का लेसन था. Now because we are talking about local government, तो आज हम समझेंगे ये local governments होती क्या हैं. Now these local governments are divided into two parts, rural government and urban government. पहले हम समझेंगे रूरल गवर्नमेंट क्या है एंड देन वील स्टडी अबाउट द अर्बन गवर्नमेंट्स. सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. सुना है आप सबने, नाम सुना है ये पंचायती राज. और आपको पता है सबसे पहले हमारे राजस्थान में ही स्टार्ट हुआ था पंचायती राज. एंड फ्यू डेज बैक, आई थिंक ऑन 24th April, we celebrated Panchayati Raj Day also. So what a wonderful time to study about this chapter, this topic. So the rural government, remember rural government popularly किस नाम से जानी जाती है? पंचायती राज से. अब ये इसमें भी 3 लेवल होते हैं. 3 लेवल रूरल गवर्नमेंट में, या आई वुड से पंचायती राज में. लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे. सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है पंचायती राज में, दैट इज नोन एज पंचायत. एवरी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, दे हैव विलेज पंचायत. ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है, सबसे लोएस्ट लेवल, सबसे छोटा इंस्टीट्यूशन, दैट इज ग्राम पंचायत. क्या कहलाती हैं ये? ग्राम पंचायत. या तो हर विलेज में होगी, इट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. अगर विलेज थोड़ा बड़ा है और वहाँ की पॉपुलेशन सफिशेंट है तो उस विलेज में वहाँ की ग्राम पंचायत होगी. बट एज यू ऑल नो, देर आर सो मैनी स्मॉल वेरी स्मॉल विलेजेस इन आवर स्टेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो जहाँ की पॉपुलेशन सफिशेंट नहीं है या जो छोटे छोटे गांव हैं, उन कुछ विलेजेस को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है. नाउ व्हाट इज दिस ग्राम पंचायत? दिस इज अ काउंसिल consisting of several ward members often called पंच. ये जो विलेज होता है
इसको अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है और हर वार्ड से ना, और हर वार्ड में पहले तो इक्वल पॉपुलेशन, नियरली इक्वल पॉपुलेशन होती है, उस हिसाब से विलेजेस को डिवाइड किया जाता है। एंड फ्रॉम एवरी वार्ड वन पंच इज इलेक्टेड और ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। विलेज इज डिवाइडेड इनटू wards. Every ward elect one panch and the head of the panchayat is known as sarpanch. And how are these panch and sarpanch elected? They are directly elected by all the adult population living in that ward. We universal adult franchise. उस वार्ड के जितने भी अडल्ट पॉपुलेशन है अबव द 18 years of age, वो अपने लिए एक पंच इलेक्ट करते हैं एंड दैट पंच इज एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन ग्राम पंचायत। दिस ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ये सारे पंच और सरपंच मिलकर पूरी विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं और गांव अपनी विलेज के लिए सारे डिसीजन लेते हैं। अब एक और बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो जनरली सुनने को बहुत कम मिलता है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। बच्चों, दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं। पहले जो अभी हमने पढ़ा जो कि इलेक्टेड बॉडी है जिसमें पंच और सरपंच इलेक्ट होते हैं बाय द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, दैट इज नोन एज ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करने के लिए, उनके काम पर नज़र रखने के लिए विलेजेस में एक और बॉडी बनाई गई है बाय द नेम ग्राम सभा। क्या नाम होता है इसका? ग्राम सभा। नाउ रिमेंबर, पंचायत इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो लोग पंचायत को इलेक्ट करते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। All the voters in the village are the members of ग्राम सभा। तो ये दो अलग अलग बॉडीज है। ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द पीपल हु आर इलेक्टिंग ग्राम पंचायत, द वोटर्स, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। अब इस ग्राम सभा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है विलेज में। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की मीटिंग होती है हर साल 2 या 3 बार, जब ये सब मिलकर बैठते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स और वो एनुअल बजट पास करते हैं। अब एनुअल बजट वो मनी है जो ग्राम पंचायत को दिया जाता है टू कैरी आउट डिफरेंट वर्क्स इन द विलेज। विलेज में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स होने हैं वो पैसा ग्राम पंचायत के लिए कौन इशू करता है, वो बजट कौन पास करता है? ग्राम सभा। एंड इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो एक तरह से ये सुपरवाइजिंग बॉडी है फॉर द ग्राम पंचायत। सो यू अंडरस्टूड, ग्राम पंचायत इलेक्टेड बॉडी है और ग्राम सभा इज अ बॉडी ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज and it supervises the functions of ग्राम पंचायत। ये तो हुआ बच्चों पहला लेवल, लोएस्ट ग्राम, है ना, विलेज लेवल पर क्या बनी? ग्राम पंचायत। देन द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेकेंड लेवल अब हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज दिस सेकेंड लेवल? अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ये है सेकेंड लेवल। सबसे लोएस्ट हुआ ग्राम पंचायत। फ्यू ग्राम पंचायत टेकन टुगेदर, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है आसपास के विलेजेस की 5, 6, 10 ग्राम पंचायत और उनको नाम दिया जाता है पंचायत समिति। क्या कहलाती हैं? पंचायत समिति। ये सेकेंड लेवल हुआ। ग्राम पंचायत का ग्रुप, few ग्राम पंचायत taken together to form पंचायत समिति। कुछ स्टेट्स में उन्हें
ब्लॉक कहा जाता है, कहीं मंडल कहा जाता है, बट पॉपुलरली दे आर नोन एज पंचायत समितिज. द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया. अब पंचायत समिति के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम पंचायत. जो ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति बननी है, वो सारी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के मेंबर्स मिलकर पंचायत समिति को इलेक्ट करते हैं. ये हुआ सेकेंड लेवल, ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति, एंड ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद. ये नाम तो सुना है सबने. तो एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समितिज हैं उनको मिलाकर क्या बनती है? जिला परिषद. तो ये हो गए 3 लेवल. लोएस्ट लेवल पर हुआ ग्राम पंचायत. फ्यू ग्राम पंचायत्स ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति, एंड ऑल द पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू बी नोन एज जिला परिषद. Most of the members of Jila Parishad are elected by the members of Panchayat Samitis. But along with these elected members, Jila Parishad में कुछ और members भी होते हैं. Like the MP of that area, member of the Lok Sabha, MLA in that district, एक district में 3 या 4 MLAs, member of Legislative Assembly हो सकते हैं, वो सब जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं. एंड द अदर ऑफिशियल्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ में होते हैं, लाइक कलेक्टर है, एसपी है, या और भी कोई जो अथॉरिटेटिव मेंबर्स हैं, पोजीशंस पर हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ जिला परिषद. तो जिला परिषद इज़ लाइक अ डिस्ट्रिक्ट बॉडी. पूरे रूरल एरियाज़ की एक गवर्निंग बॉडी होती है जिला परिषद, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करती है. इसके मेंबर्स इलेक्टेड भी हैं, विच आर इलेक्टेड बाय पंचायत समितिज, एंड द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, एमपी, एमएलए, कलेक्टर, एसपी, और भी जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ जिला परिषद. एंड द हेड ऑफ द जिला परिषद इज नोन एज जिला प्रमुख. क्या कहलाता है? जिला प्रमुख. तो ये तो जो हमने डिस्कस किया बच्चों, दिस वॉज द रूरल लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, विलेज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. ये तो बात हो गई विलेजेस की, द लोकल गवर्नमेंट इन द विलेजेस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स अर्बन एरियाज. सिटीज़ को भी 3 लेवल में बांटा गया है. ठीक है. The local government bodies exist for the urban areas also, and they are also divided into 3 categories. जो small towns हैं वहाँ पर जो elected body होती है that is known as municipality, नगर पालिका. ठीक है. तो all the cities and towns they are also divided into wards. आप भी किसी न किसी वार्ड के में तो रह ही रहे होंगे. तो वो पूरी सिटी को, टाउन को अगेन वार्ड्स में बांटा गया है, और हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट होता है, विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. और स्मॉल सिटीज़ और जो टाउन्स हैं वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है या लोकल गवर्नमेंट है, व्हाट इज नोन एज म्यूनिसिपैलिटी. और जो ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, लाइक आवर सिटी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जनरली, या थोड़े बड़े टाउन्स या सिटीज़ हैं, वहाँ पर बनाई गई है नगर परिषद. क्या बनाई है बच्चों? नगर परिषद. स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ में है नगर पालिका, थोड़े बड़े टाउन्स या सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाई गई है नगर परिषद. एंड द बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. और जो बिग सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, या जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े सिटीज़, वहाँ पर बनती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम. तो 3 लेवल हो गए अर्बन गवर्नमेंट के भी, नगर पालिका,
Nagar Parishad and Nagar Nigam. All these municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies. ये सब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होती हैं. हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज मेयर. बाकी म्यूनिसिपैलिटी और नगर परिषद के हेड तो कहलाते हैं चेयरमैन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कहलाते हैं मेयर. They are all directly elected by sometimes they are directly elected by the people. Sometimes these chairmen are elected by the members of these municipalities and municipal corporations. And they carry out the administrative work in the cities. तो ये अभी हमने बच्चों समझा हमारी लोकल गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर. पंचायती राज जो कि रूरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, और अर्बन एरियाज म्यूनिसिपैलिटी, नगर परिषद एंड नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. All these institutions, all these bodies are directly elected by universal adult franchise. All the villages, towns and cities are divided into wards. हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है और वो उस वार्ड का ही होता है, तो वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझता है, और इस तरह से लोकल गवर्नमेंट फंक्शन करती है इंडिया में. सो व्हेन Indian government adopted this system of decentralization and local government, it is considered as the largest experiment in democracy all over the world. ये 3 levels of government जो बनाई गई हैं, स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट है, जो देखो कहाँ तक जा रही है, एक विलेज लेवल तक. हमारी एक छोटी सी विलेज भी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का ये जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेसफुली सिर्फ कौन सी कंट्री में फंक्शन कर रहा है? इंडिया में. और वर्ल्ड की किसी कंट्री में ये एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिलेगा. यू नो, there are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities. जो नंबर मैंने बोला बच्चों, 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ये तो सिर्फ कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट में है. इसमें MP MLA का नंबर काउंट नहीं हो रहा है. ये तो जो ग्राम पंचायत्स हैं या नगर पालिका है, नगर परिषद है, इसमें जो इलेक्ट हो रहे हैं, इट इज़ मोर देन 36 lakh representatives all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. 36 lakh तो कई छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज़ अगर लो, या यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ छोटे इतने हैं, उनकी तो टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है जितना इंडिया में कौन है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. इस लोकल गवर्नमेंट की अगर हम पॉजिटिविटी देखें, एडवांटेज देखें, तो ये जो ग्रास रूट लेवल तक, विलेज लेवल तक जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स बनी हैं, इससे हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हुई है. गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, not only the central government, not only the state governments, but even every village government is elected by the people. दूसरा एडवांटेज क्या है इसका? It has increased the number of women representatives and their voice in our democracy. Remember, पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था जब स्ट्रॉन्ग बनाया गया लोकल गवर्नमेंट्स को? 1/3 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर विमेन. तो ये जो 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसका 1/3 33% कौन है? विमेन. आप गांव में चले जाओ, विलेजेस में आप जाते हो, वहाँ पर आपको लार्ज नंबर में विमेन सरपंच मिलेंगी. इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर विमेन पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब विमेन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स and are getting elected to these bodies,
and they are taking major decisions for their areas. तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो इस लोकल गवर्नमेंट का है, that is that women have got so much of power through this local government. They are becoming panch and sarpanch and ward members and taking decision for their areas. लेकिन हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं. अगर लोकल गवर्नमेंट की एडवांटेजेस हैं तो देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? While elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभाज are not held regularly. अभी हम जब ग्राम पंचायत पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कि ग्राम सभा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है विलेजेस में. क्या थे फंक्शंस ग्राम सभा के? इट पासेस द एनुअल बजट, इट सुपरवाइजेस द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? ग्राम सभा की मीटिंग्स ही नहीं होती हैं. नाउ जस्ट इमेजिन इफ द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड, बजट कौन पास करेगा ग्राम पंचायत के लिए? ग्राम पंचायत प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं, ये सुपरवाइज कौन करेगा? तो जो एक डिसएडवांटेज है इसमें वो ये है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स, जो कि लिखा हुआ है कि एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस मीटिंग होनी चाहिए एक ईयर में, दोज मीटिंग्स आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. इससे क्या होता है? ग्राम पंचायत को प्रॉपर बजट नहीं अवेलेबल हो पाता है टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस इन द विलेज. तो वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा सा पीछे रह जाता है. दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पार्ट्स टू द लोकल गवर्नमेंट. पॉइंट्स में हमने एक बात समझी थी दैट इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द विशेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव पार्ट्स टू दीज लोकल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये कहीं नहीं लिखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स कितने पास देंगी लोकल गवर्नमेंट को. तो कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पार्स दे दिए गए हैं. फॉर्चुनेटली राजस्थान हैज़ गिवन टू मच पास टू पंचायती राज. हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत पार्स दे रखे हैं पंचायत्स को और लोकल गवर्नमेंट्स को. बट दिस इज़ नॉट सो विथ ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट. बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पार्स नहीं दिए हैं. तो क्या हो रहा है? स्टिल दोज लोकल गवर्नमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर देयर पार्स. कुछ भी अगर उन्हें फंक्शन करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, फर्स्ट दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन दे हैव टू डू द वर्क. तो इससे डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने ज़्यादा पार्स नहीं दिए हैं. और तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा? दे हैव ऑल्सो नॉट गिवन एडुकेट रिसोर्सेज टू दीज गवर्नमेंट्स. एडुकेट रिसोर्सेज, टैक्सेस, पैसा. लोकल गवर्नमेंट के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट वर्क कैसे करेगी? अभी भी दे हैव टू डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर मनी. सिटी में कुछ करना है या विलेज में कुछ करना है तो क्या होगा? उसे स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़ता है, वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है. तो इस सब में बहुत टाइम लगता है. तो डेवलपमेंट वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाता है. तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट. तो बिकॉज ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस अभी भी जो हम इंडिया में एक सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, वो अभी और थोड़ा सा टाइम मिलेगा. लेकिन प्रोसेस में है हम. वी आर ट्राइंग टू मेक आवर लोकल गवर्नमेंट्स मोर एंड मोर पावरफुल. सो दिस इज गोइंग टू मेक फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग इन आवर कंट्री. तो ये था बच्चों हमारा सेकेंड चैप्टर, फेडरलिज्म. We started with division of power between state and central governments and then we moved towards decentralization. हमने local government समझा आज. क्या होती है local government? रूरल एरियाज़ की पंचायती राज है, अर्बन एरियाज़ में लोकल गवर्नमेंट है, कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया गया
उनका स्ट्रक्चर आपको पूरा याद करना है, कैसे बनती है, पंचायती राज क्या होता है, रूरल गवर्नमेंट क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, अर्बन गवर्नमेंट्स कैसे फॉर्म होती हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं और क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं. सो with this we come to an end of our second chapter, federalism. I hope you understood the chapter. Go through it again and again, and if you have any difficulties you are free to ask me. So it's goodbye from now. Keep learning.